Hello everyone, this is Disha welcoming you to the Chance EduTech. Today I am going to take English of class 9 and the topic is The Little Girl from Beehive book. Today I am going to teach part 1 of this lesson. So first of all, I would like to tell you about the author of this lesson, about the writer of this lesson. This is a beautiful story written by Katherine Mansfield. And this story is in itself a very nice, very interesting story. But before I continue, before I give a brief introduction to the story, I want to give a brief introduction about the author. Kathleen Mansfield Murray, better known by the name Katherine Mansfield, was born on 14 October 1888 and she died on 9 January 1923. Was a New Zealand writer, essayist and journalist, widely considered one of the most influential and important authors of the modernist movement. ध्यान देंगे, कैथलीन मैन्सफील्ड मरी, जो इनका पूरा नाम है, and this authoress was known by the name Katherine Mansfield. She was born on 14 October 1888 and she died on 9 January 1923. और कैथरीन मैन्सफील्ड, she was a New Zealand writer, और न्यूजीलैंड की रहने वाली थी और वो न्यूजीलैंड लेखिका के रूप में वो जानी जाती हैं. She is a female. She is remembered as a New Zealand writer, essayist, journalist, widely considered one of the most influential and most important authors of the modernist movement. तो मॉडर्न मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर्स मानी जाती है, बहुत बड़े राइटर्स माने जाते हैं. मॉडर्न मूवमेंट में इन्होंने ढेर सारे लेखन का कार्य किया, ऐसे लिखे और एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया और खास करके शी इज रिमेंबर्ड एज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड इंपॉर्टेंट ऑथर्स ऑफ मॉडर्न मूवमेंट, modernist movement of modern times. Her works are celebrated across the world and have been published in 25 languages. इन्होंने जो कार्य किया है, लेखन का क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया है, इसको बहुत सराहा गया. She is appreciated and her writings have been published in 25 languages. 25 लैंग्वेज में इनके लेखन को संपादन किया गया है, 25 लैंग्वेजेस में, 25 भाषाओं में. तो अब सोच सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट राइटर शी वॉज, शी हैड बीन. ओके, नेक्स्ट. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी द लिटिल गर्ल, I mean the little girl, the title of the story is the story of a small girl, I mean little girl named Kezia, who keeps herself away from her father because of her strictness and rude behavior. She likes to have a father who is well behaved and not rude. And there comes a time when she realizes about her father's emotions and love, and she thinks that her father was the best father in the world. So let's look at the brief introduction of the story. The Little Girl is the story of a little girl, Kezia, who misunderstood her
father's strictness and usually remained scared of him. ये जो कहानी है लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची की कहानी है जिसका नाम है केजिया, जो अपने फादर को बिहेवियर को, उनके स्ट्रिक्टनेस को वो मिसअंडरस्टूड करती है और अपने फादर से डरती भी है। कौन पिता है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, अपना बेटा हो या बेटी हो? तो केजिया का फादर भी उतना ही प्यार करते थे जितने दूसरे फादर्स करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन केजिया रियलाइज नहीं की, she did not realize that her father was so nice, so kind, and he was such a loving person. So she was very much scared of her strictness, and she misunderstood that he was a rude father. Okay, she kept a distance from him whenever he would be at home. जब भी उसके पिता, केजिया के पिता घर पे रहते तो हमेशा ये दूरी मेंटेन करती थी। कौन? केजिया। केजिया मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम हर फादर। शी केप्ट अवे, शी केप्ट हरसेल्फ अवे फ्रॉम हर फादर। शी नेवर लाइक टू गो इन फ्रंट ऑफ हर फादर। शी कंसिडर्ड हिम टू बी एज बिग एज ए जायंट। और अपने पिता को एक दैत्य से वो कम नहीं समझती थी। उसको लगता था कि उसके पिता बस जैसा दैत्य विशाल होता है, उसके फादर भी उस दैत्य के जैसे विशाल चेहरे वाले, विशाल शरीर वाले व्यक्ति हैं। She would often get nervous and stutter while talking to him. और ज्यादातर केजिया जो छोटी सी बच्ची है अपने पिता के सामने जब आ जाती थी तो बिल्कुल वो नर्वस हो जाती थी और अपने फादर के सामने हकलाना शुरू कर देती थी। She started stammering before her father. She longed for his love and affection like her neighbor Mr. McDonald. और केजिया अपने पिता का प्यार पाने की इच्छा करती है, इंतजार करती है। उसके मन में वो कल्पना आता है कि काश उसके पिता उनके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनाल्ड के जैसे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उस प्रकार लव एंड अफेक्शन दे पाते। तो केजिया सोचती है अपने पिता के बारे में, इमेजिन करती है कि काश उसके पिता मिस्टर मैकडोनाल्ड के जैसे अपने बच्चों को माने उसे प्यार दे पाते, अफेक्शन दे पाते। तो इस प्रकार की कल्पना करती है, इमेजिन करती है अपने माइंड में। The theme of the story is the relationship between children and their parents, and the writer Catherine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया, थीम यही है, विषय यही है कि बच्चों का अपने पेरेंट्स से रिलेशन कैसा रहता है। How the children are attached to their parents, how they are related to their parents. और ये राइटर जो कैथरीन मैन्सफील्ड हमें यह संदेश देने का कोशिश की है, ये लेखिका, कि ये जो कहानी है ये क्या शेयर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स। मतलब उनका मैसेज है कि बच्चे जो है वो क्या शेयर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। सो दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द bond of love and affection of the children with their parents. Clear? Next. Before you read, as given in your textbook, you see, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को अच्छा से जान पाए हो अभी जब तुम बहुत छोटे थे उससे अच्छा से जान पाए हो? जितना जानते थे तुम बचपन में उससे अच्छा अभी तुम बड़े हो गए हो बच्चों, तो अपने पेरेंट्स को अच्छा से जान पाए हो? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. तो अभी आप लोग क्लास 9th में हैं, बड़े हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को
अच्छा से समझ पाते होंगे। आप में और उन पे एक बहुत गहरा रिलेशनशिप होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं होगी। तो अभी आप याद करते होंगे उन दिनों के बारे में, उन कार्यों के बारे में जब आपके पेरेंट्स आपसे थोड़ा सा रूड हुआ करते होंगे, गुस्सा किया करते होंगे बचपन में, ये मत करो, वो मत करो, समय से सो जाओ, समय से पढ़ो, समय से खेलो, ये सब बातें बताते होंगे, और तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो कहानी है एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका मन का भावना उसका पिताजी के लिए बदल जाता है। पहले मन में भावना कुछ और रहता है। She was rude to her father. Okay, she never understood her father, that her father was so lovely person. He was so affectionate and loving. She never realized before, but a change comes in her. She saw the inside of her father, what lies in her father's heart. When she realizes all these things, her mentality changes from rude behavior to understanding, and you will find this sort of examples in every home. Okay, next. Now the story begins from here. This is the first paragraph. So, how the little girl is sitting there. She is so sad. You can see the picture. You can view the picture. She is looking so sad, sitting over there alone. And in the same way, Kezia also sat alone. She thought about her father. She thought about the anger, wrath, and rudeness of her father. Now the story begins. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. इस बच्ची के लिए, मतलब केजिया जिसके बात हम कर रहे हैं, शुरू में बताए हैं, इस बच्ची के लिए इसके पिता एक ऐसे फिगर थे जिससे वो बहुत डरती थी और अवॉइड करती थी, उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। अवॉइड करना मतलब उनके सामने नहीं होना, उनके सामने नहीं जाना। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. रोज सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले इस बच्ची के पिता, केजिया के पिता, उसके रूम में जाते थे और उसको कैजुअल किस दिया करते थे, अपना लव एंड अफेक्शन दिया करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और जिसका वो जवाब क्या देती थी, जब वो कैजुअल किस उसके पिता देते थे तो ये बोलती थी गुड बाय फादर, मीन्स बाय बाय फादर। हम लोग बोलते हैं ना बाय बाय, सी यू, गुड बाय। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और एक बात और थी, उसके मन में बहुत ही एक खुशी की फीलिंग आती थी और वो चैन की सांस लेती थी ये बच्ची केजिया, जब उसके पिता कैरेज में सवार होकर थोड़ा दूर निकल जाते और कैरेज का आवाज धीरे धीरे कम सुनाई देते कैरेज का आवाज बंद हो जाता था। जब कैरेज रोड पर चलता था उनका, उसके पिता जब उस कैरेज में बैठकर जाते थे और कैरेज का आवाज जब फेंट हो जाता था तो ये बहुत खुश होती थी और बहुत चैन की सांस लेती थी। ये इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई ये बच्ची है कि अपने पिता को नहीं समझ पाती थी। ये समझती थी कि इसके पिता एक जायंट है, दैत्य है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को केजिया के पिता जब घर आते, देखो किस प्रकार से एक पिता अपने बेटी पर गुस्सा दिखा रहा है, इस पिक्चर दिया हुआ है। Let's see the picture. Okay. तो in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को इसके पिता जब ऑफिस से घर आते, ये क्या करती थी, सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी और उनके
ऊंचे आवाज को सुना करती थी। हमेशा गुस्से में बात किया करते थे। नॉर्मल उनका वही आदत था, जोर जोर से चित्कार करके बातें करना, कोई चीज को मांगना, कोई चीज का डिमांड करना। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो इसके पिता अपने माँ को आदेश दिया करते थे कि मेरे चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है क्या? माँ तुम जाओ और मेरा पेपर लेकर आओ, देखो वहां पर मेरा पेपर है कि नहीं, और मेरा स्लीपर्स भी लेकर आओ, मेरे चप्पल भी लेकर आओ। अपने माँ से बात करते थे, आदेश देने के रूप में वो बात करते थे, जोर जोर से बात करते थे, और बात में थोड़ा सा एंगर भी रहता था। हालांकि दिल के बहुत अच्छे थे इसके पिता, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. और केजिया की दादी माँ यानी उसके पिता की माँ, केजिया की दादी माँ उसे केजिया से कहती है कि केजिया, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम सीढ़ियों से नीचे आ सकती हो, नीचे वाले रूम में आ सकती हो, और वहां अपने पिता के बूट्स को, जूते को निकाल सकती हो, क्योंकि वो अभी अभी ऑफिस से आए हैं और बहुत थके हुए हैं। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और ये बच्ची धीरे से सीढ़ियों से होते हुए धीरे से नीचे जाया करती थी, ग्राउंड फ्लोर में जाया करती थी, एकदम धीरे धीरे। और ड्राइंग रूम में इसके पिता जब ऑफिस से आते थे तो आराम करते थे, उसको धीरे से पुश करके दरवाजे को खोला करती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब तक ये लड़की अपने पिता के रूम में दाखिल हो जाती, ड्राइंग रूम का दरवाजा धीरे से खोलकर, उस समय तक क्या होता था, इसके पिता अपने स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे पहन लेते थे, और चश्मे पहने हुए इसको केजिया को ऐसे तरीके से देखते थे जिससे कि वो लड़की बहुत भयभीत हो जाती थी। टेरिफाइंग मतलब भयभीत हो जाना। ये लड़की जो केजिया, वो उसके पिता के इस तरीके से बिहेवियर को देखते हुए वो भयभीत हो जाती थी, क्योंकि उसके पिता खास करके ऊंची आवाज में बोला करते थे। इसीलिए केजिया बहुत ही डर जाती थी, बहुत समझ जाती थी। और क्या कहते थे अपने बेटी से, उसके पिता केजिया से क्या कहते थे, देखिए। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। बोलते थे, ठीक है केजिया, जल्दी करो और मेरे बूट को जल्दी जल्दी निकालो और उसे बाहर रख दो। Have you been a good girl today? क्या तुम एक अच्छी लड़की जैसे आज पेश आई हो? अपने बेटी केजिया से उसके पिता पूछते हैं, केजिया के पिता उससे पूछते हैं, आज एक अच्छी बच्ची जैसे बिहेव की थी घर में? तो क्या जवाब देती है? I don't know father। तो हकलाते हुए बोलती है, स्टैमर करते, स्टैमरिंग वे में, स्टटरिंग करते हुए बोलती है, I don't know father। इस प्रकार से बोलती है हकलाते हुए। फिर उसके पिता भी हकलाते हुए से बात करते हैं, एक्टिंग करते हुए, उसके हकलाने का एक्टिंग करते हैं। केजिया का हकलाने का एक्टिंग के अंदाज में बात करते हैं। देखिए कैसे, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो कि तुम कैसे बिहेव की हो आज। इफ यू स्टटल लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। इस प्रकार से हकलाते हुए तुम बात करोगे। उसके पिता कहते हैं, केजिया के पिता केजिया से कहते हैं कि इस प्रकार से डरे हुए, हकलाते हुए, सहमे हुए हमसे बातें करोगी तो तुम्हारे दादी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा इलाज करवाने के लिए। अब सोच लो, तुम हकला के बात करना चाहती हो कि नॉर्मल वे में बात करना चाहती हो, तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट, शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। किसी और व्यक्ति से वो हकला कर कभी बात नहीं किया करती थी केजिया। केजिया नेवर स्पोक
in such a way as she spoke with her father. Because she spoke with other in a normal way, while with her father she spoke in a different way, as she was so much scared of her father. She never stated with other people, had quite given it up. यहाँ तक कि कभी स्टैमरिंग नहीं किया करती थी, हकलाकर बात नहीं किया करती थी दूसरे किसी से. But only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. किंतु लेकिन अपने पिता को देखकर इतनी डर जाती थी कि डर से हकलाने लगती थी और सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती है, उसका उच्चारण भी नहीं कर पाती है और हकला कर बातें करती थी अपने पिता के साथ. What's the matter? What are you looking so wretched about? फिर जब हकला कर बात करती है केजिया, तो उसके पिता पूछते हैं क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? What are you looking so wretched about? इतना उदास क्यों दिख रही हो, इतना घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. और तब केजिया का फादर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बच्ची को ऐसे डराई नहीं, ऐसे डर के बातें नहीं करने को नहीं सिखाई हो कि ये बच्ची सुसाइड कर ले डर से. इस प्रकार से बातें कर रही है जैसे कि कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है अपने पिता के डर से. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और फिर उसके पिता बोलते हैं केजिया, ये लो मेरे टी कप सावधानी पूर्वक ले जाकर टेबल पर रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. और केजिया के पिता एक विशाल हट्टे कट्टे व्यक्ति थे, मोटे तगड़े व्यक्ति थे, और खास करके उनके हाथ बड़े बड़े हाथ थे, लंबे लंबे, उनका गर्दन भी बड़ा था, तगड़ा था, गर्दन मोटा था. स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न. लेकिन वो जब यॉर्निंग करते थे तो केजिया के पिता के चेहरे को देखने लायक रहता था. उनका मुख पूरा बड़ा सा, विशाल सा, दैत्य के जैसा उनका मुंह खुल जाता था. इसीलिए केजिया डरती थी. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट. अगर कोई केजिया के पिता के बारे में सोचे, इसका मतलब वो किसी दैत्य के बारे में सोच रहा है. अगर कोई अकेले केजिया के पिता के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब सोचिए कोई दैत्य के बारे में सोच रहा है. गिवन इट अप मींस स्टॉप डूइंग इट. ठीक है. Wretched means unhappy. On the brink of suicide means about to commit suicide. These are the word meanings. Next. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे के दिन दोपहर के समय दादी माँ केजिया को नीचे, सीढ़ियों से नीचे ड्राइंग रूम में भेजा करती थी, जो कि अपने पिता और माता से अच्छी अच्छी बातें करे. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन ये बच्ची क्या देखा करती थी? जब भी ये ड्राइंग रूम में जाती थी, हमेशा देखा करती थी कि देखिए पिक्चर है यहाँ पर, उसकी माँ किताबें पढ़ रही है और उसके पिता सोफा पर पैर फैलाए लेटे हुए हैं और अपने चेहरे को रुमाल से ढक दिए हैं और अपना पैर एक बहुत ही अच्छे कुशन्स पर, गद्दीदार जगह पर वो रखे हैं और गहरे नींद में सो रहे हैं और खराटे भी ले रहे हैं. तो इसके पिता जहां वो गई है उसके पिता से मिलने, बातें करने के लिए, तो देख रही है उसकी माँ किताबों को पढ़ रही है और उसके पिता क्या कर रहे हैं? आराम से सोए हुए हैं और लंबे लंबे खराटे ले रहे हैं. तो ये सिचुएशन देख के ये और भी डर जाती है. नेक्स्ट. बच्ची चिंतित अवस्था में हो तो वो ऐसे ही रहेगी. केजिया अगर ऐसी ही चिंतित अवस्था में वो रहती थी. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और क्या करती थी केजिया? जब उसके पिता सोए रहते थे तो ये स्टूल पर बैठ जाती थी. छोटा सा स्टूल था, स्टूल पर ये बैठ जाती थी
और ध्यानपूर्वक, डरे हुए भाव में अपने पिता के तरफ देखा करती थी, निहारती रहती थी, जब तक कि वो नींद से न जग जाते और तब जब तक वो अपना हाथ तो स्ट्रेच नहीं करते। सोकर उठने के बाद आदमी कितने अपने हाथों को स्ट्रेच करता है। एंड आज द टाइम, और तब उसके पिता उसे टाइम पूछते, देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद उसकी तरफ देखते, नहीं टाइम पूछते, जो भी व्यक्ति रहता था घर में उसे टाइम पूछते हैं और फिर केजिया की तरफ मुड़कर देखते हैं ध्यानपूर्वक। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन हाउस। और केजिया भी घुराए नजरों से, डरे हुए नजरों से अपने पिता के तरफ टकटकी नजरों से देखती रहती। और तब इसको देखकर, उसके चेहरे के उदासीनता को देखकर, डर को देखकर केजिया का पिता बोलते हैं कि केजिया, इस प्रकार से घुराए हुए नजरों से मत देखो, तुम बिल्कुल एक ब्राउन आउल के जैसे दिख रही है, छोटी सी ब्राउन आउल के जैसे दिख रही हो, इस प्रकार से घुराए नजरों से मेरे तरफ मत देखो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन की बात है जब एक दिन केजिया को सर्दी हो गई थी, सर्दी जुकाम हो गई थी, और उसकी दादी, और उसे अंदर में रखा गया था, घर के अंदर, उसे बाहर नहीं निकलने दिया गया था। तो उसकी दादी माँ उससे कहती है कि अगले सप्ताह तुम्हारे पिता का जन्मदिन है, मतलब केजिया को कहती है कि केजिया तुम्हारे पिता का जन्मदिन है अगले सप्ताह। और उसको यह सजेस्ट करती है उसकी दादी माँ कि केजिया अपने पिता के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट बनाए। और क्या गिफ्ट बनाए? पिन कुशन्स बनाए। पिन कुशन्स छोटा सा, ये तीन तरफ, चारों तरफ से सिलाई करके ये बनाया जाता है। तीन तरफ पहले सिया जाता है कपड़े को, जैसे तकिया को सीते हैं, और उसमें छोटा सा लिया जाता है, उसमें कुछ स्टफिंग कर दिया जाता है जिसमें, जिससे कि उसमें पिन, हम लोग पिन उसमें घुसा कर रख सकें, इसी को बोलते हैं पिन कुशन्स। तो उसकी दादी माँ ने सजेस्ट किया केजिया से कि अपने पिता के लिए गिफ्ट, सुंदर सा गिफ्ट बनाए, एक सुंदर सा पिन कुशन बनाए जो कि येलो सिल्क का बना हो, वो खुद बनाए और अपने पिता को जन्मदिन पर गिफ्ट करे। नेक्स्ट, laboriously with a double cotton the little girl stitched the three sides, but what to fill with, और बहुत मेहनत करके, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, ये छोटी सी बच्ची तीनों साइड, वो कपड़े का तीनों तरफ थ्री साइड्स में स्टिच की और डबल कॉटन का यूज की। उसके बाद चौथा साइड जो खुला हुआ था, सोची कि उसको कैसे भरे, कैसे क्या चीज से उसको फिलअप करे, अब वो सोचने लगी। दैट वाज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहा था उस बच्ची के, केजिया के दिमाग में, कि इस पिन कुशन तो बना दियो, लेकिन उसके अंदर कुछ भरने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, कुछ रफ कोई चीज चाहिए जो उसमें डाल दें, और उसके बाद चौथा उसका जो माउथ है उसको भी सिलाई कर दे, चौथा ओपनिंग है जो सिलाई कर दे। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. और उस समय दादी माँ गार्डन में कुछ काम कर रही थी और वो उस बेडरूम में, अपने माँ का बेडरूम में भटकती रही कोई ना कोई चीज खोजने के लिए। कौन? केजिया। कोई ऐसा चीज खोजने के लिए भटक रही थी। क्या? स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन्स पीसेस ऑफ पेपर। स्क्रैप्स का मतलब होता है पीसेस ऑफ पेपर। पेपर के टुकड़े खोजने के लिए वो केजिया अपने माँ के कमरे में इधर उधर भटक रही थी, टहल रही थी। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed the fourth side. अब क्या किए? बेड के पास एक टेबल था। टेबल पर केजिया ने देखा कि ढेर सारे शीट्स हैं, फाइन पेपर, अच्छे पेपर के कितने सारे शीट्स थे, पीसेस थे। उसको इकट्ठा की, उन सारे पेपर्स को, कागज को, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाली, टीयरिंग कर दी, शी टोर इनटू सो मेनी पीसेस एंड
सी स्टफ्ड हर केस, और पिन कुजन के लिए जो केस बनाई थी, सी फिल्ड दैट पिन कुजन केस विथ द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर एंड देन सीव्ड ऑफ फ्रॉम द फोर्थ साइड, और चौथा तरफ जो खुला था वो जो केस का, उसको बंद कर दी, सिलाई कर दी। That night there was a hue and cry in the house. Father, और उस रात घर में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। Hue and cry. Hue and cry means disturbance, protest. There was a protest in the house. Means somebody showed anger. Somebody protested against Kezia. Father's great speech for the port authority had been lost. केजिया के पिता का जो इतना बहुत ही अच्छा एक स्पीच लिखे थे, बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष करके, बहुत स्ट्रगल करके इसके पिता पोर्ट अथॉरिटी मतलब पोर्ट अधिकारी के लिए एक स्पीच लिखे थे, वो खो गया था, नहीं मिल रहा था। पेपर पे भी लिखे थे, वो पेपर ही नहीं मिल रहे थे। रूम्स वेर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, सारे रूम्स को खोजा गया, चप्पा चप्पा छान मारा गया कि कहाँ है वो पेपर। सर्वेंट से क्वेश्चन भी पूछे गए जो नौकर चाकर थे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में इनकी माँ, इनकी दादी माँ, आई मीन केजिया की दादी माँ और केजिया के पिता की माँ अंत में केजिया के रूम में आई, जिस रूम में केजिया आराम किया करती थी, अपने समय बिताती थी, लेटा करती थी। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। और तब केजिया की दादी माँ पूछ बैठी कि केजिया, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई पेपर्स एक टेबल पर नहीं देखी होगी इस रूम में, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, हमें उम्मीद है कि तुम नहीं जानती होगी उसके बारे में। ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। तब केजिया बोलती है, ओह उस पेपर की बात कर रही हैं, मैंने तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया उस सरप्राइज के लिए, वो सडन सरप्राइज जो देना है पिताजी को, पापा को सडन सरप्राइज जो देना है, उसके लिए मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए उस पेपर का को जो टेबल पर रखा हुआ था। वॉट स्क्रीम्ड मदर। तभी केजिया की दादी माँ चौंके भाव से चिल्लाई, क्या तुमने क्या किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत तुम डाइनिंग रूम में चलो, अभी के अभी तुम डाइनिंग रूम में चलो। इसकी दादी माँ केजिया से बोल उठी। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। एंड उसको खींच कर उसके हाथ पकड़ के ड्रैगिंग करके केजिया को उसके पिता के पास ले जाया गया, जहां उसके पिता अपने हाथ को ऐसे पीछे करते हुए रूम में ही टहल रहे थे और गुस्से में थे। उसके पिता, कोई आदमी जब गुस्सा हो जाता है तो सीरियस बहुत हो जाता है, ऐसे अपने पीठ के पीछे हाथ कर देता है और ऐसा घूमने लगता है, उस जगह में टहलने लगता है। तो उसके पिता भी अपने दोनों हाथ के पीछे करके इधर उधर भटक रहे थे उसी रूम में, डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में। वेल ही सेड शार्पली, और केजिया जैसे आई तो केजिया के पिता बोले, वेल अच्छा, शार्पली मतलब गुस्से में। मदर एक्सप्लेन, तब उसकी दादी माँ पूरी कहानी बताई कि केजिया ने उन पेपर का क्या किया, वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो पोर्ट अथॉरिटी को देना था, उसको क्या किया इसने। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उसी समय वो चलना ऐसा करके चल रहे थे, वो चलने को टहल रहे थे रूम में, उसको रोक दिया और एक जगह खड़े हो गए और बच्ची की तरफ घुर्राए नजरों से देखने लगे। कौन? उसके पिता। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो काम किया है? ना ना नो, शी विस्पर्ड। तब वो बोल उठी कि नहीं नहीं, मैंने नहीं की है, हमने नहीं उस कागज को, उस कागजात को टुकड़े टुकड़े किया है। मतलब हकला कर बोलने लगी डर से, ना ना नो, हालांकि वही की थी।
Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. और फिर अपने माँ से, कीजिया के पिता कहते हैं, कीजिया की दादी माँ से कि माँ अभी कभी तुम उसके रूम में जाओ, कीजिया के रूम में जाओ और उस चीज, वो जो पेपर्स को टुकड़े टुकड़ों में कर दी है, फाड़ डाली है, उसको लेकर आइए। देखिए ये बच्ची हो अभी उसको बेड पे ही रखी होगी। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस स्टैंड। अभी अभी हो सकता है उस चीज को, उस कागज के टुकड़े को कहीं ये बच्ची बेड पे रखी होगी। तो अपने पिता को, अपने माता को उसके पिता आदेश देते हैं। नेक्स्ट, crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और केजिया सिसक सिसक कर रोने लगी। वो एक्सप्लेन करना चाहती थी। वो शैडोड रूम में, छायादार रूम कक्ष में, वो इवनिंग का लाइट, रात्रि का, शाम का लाइट को देख रही थी, शाम के प्रकाश को देख रही थी, जो प्रकाश सैड पैटर्न कर रहे थे फ्लोर पर हल्के फुल्के प्रकाश आ रहे थे बाहर के, उसको वो देख रही थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. तब उसके पिता एक हाथ में रूलर लिए हुए घुसते हैं उसके रूम में। I am going to beat you for this, he said. और उसके पिता उससे बोल उठे, ये जो तुमने गलती की है इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं। Oh no no, she screamed hiding under the bedclothes. और वो क्या की, बेडक्लॉथ, जो बिछावन थे, जो बेड पे जो कपड़े थे, उसमें वो अपने आप को छिपा लेती है और बोलती है, ओ नो नो नो, नहीं नहीं मुझे मत मारिए। वो रिक्वेस्ट करने लगती है। He pulled them aside. उसके पिता उस चादर को खींच लेते हैं, बेडशीट को, और फिर बोलते हैं सिट अप, बैठ जाओ। He ordered. वो आदेश देते हैं कि ठीक से सीधा बैठो। And hold out your hands. और तुम अपने हाथ को बाहर निकालो, हाथ को ऐसे करो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें सबक सीखना चाहिए, जो तुम्हारा नहीं है तुम्हें उसको हाथ नहीं देना चाहिए। जो तुम्हारा नहीं है, जो किसी और का चीज को तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था, तो तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तब वो उत्तर दी कीजिए कि लेकिन पिताजी ये आपके बर्थडे के लिए मैं बनाई थी, आपके जन्मदिन के अवसर पर गिफ्ट देने के लिए। तो हकला कर भी बोलती है, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। उसके छोटे से गुलाबी जो पाम्स है हथेली पर स्केल से, रूलर से दे मारे इसके पिता, इस रूल से मारने लगे। किसको? केजिया के हाथ पर 2-4 छड़ी दिए होंगे। देखो किस प्रकार केजिया का फादर केजिया को रूल से मारने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ part 1 of this lesson. I'll come with the next part of the lesson in the next class. Till then, goodbye. Thank you.